Good morning, dear students. Welcome to my online classes. Today we will study the second part of our fourth lesson, The Enemy, written by Paul S. Buck. So, in the previous lecture, you have seen how both Hannah and Dr. Sadao were puzzled about the treatment given to the injured soldier. So, finally, both of them decided that they must throw that wounded prisoner into the sea, but no one was dared to act first. As both of them were very uh, kind hearted people, so they found themselves unable to do what their mind was directing them. So let's move to the next lecture. Thus agreed together, they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time, until it is the only feathers and a skeleton. So finally, as both of them were reluctant to throw the man in the sea, so as a conclusion, finally they decided to help this wounded man, and both of them lifted the man and took him to his house. The soldier was very light, like a fowl. Fowl here means bird that had been starved for a long time. And it seems that only it had feathers and a skeleton. It means that uh, the weight of that wounded soldier was very low. So this his arms hanging, they carried him up to the steps and into the side of the door of the house. And with a little difficulty, both of them carried that wounded soldier at the uh, back of their houses and uh, carried him to the door of their house. This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. And at the back door, they opened this back door, lead them to into a passage, and then they carried that wounded man in an empty bedroom. It had been the bedroom of Sadao's father, and since his death, it had not been used. And this empty house belonged to Sadao's father. It was his personal bedroom, and since after his death, nobody has uh, used it for a long time. And today, this his father's room is used for the treatment of this wounded soldier. It had not been used. They laid the man on the deeply matted floor. Everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. So Dr. Sadao's father was a man uh, of Japanese nature. He was a traditional man who believed that who believed in all the cultures of Japan. So everything inside the room was placed, uh, was kept as to please that old man, and he never uh, thought of using a bed or any foreign articles. So this wounded man was laid on the floor. Hannah went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flowered silk and lining was pure white silk. Then Hannah again went to the cupboards and she came back with a soft quilt. But now she was hesitant to uh,
give such beautiful quilt to that dirty wounded soldier, as it was the quilt was decorated with flowered silk and its lining was pure white silk. So she was hesitant because that wounded soldier was very dirty with the mud, and he had long hair and beards which give a filthy appearances. तो यहाँ पर हमने देखा कि अंतिम में ना चाहते हुए भी हना और डॉक्टर सडाओ ने मिल करके उस घायल सिपाही को वो अपने घर लाने का फैसला करते हैं। और जैसे वो अपने घर की तरफ पहुंचते हैं तो पीछे वाले दरवाजे से उस घायल सिपाही को वो अपने घर में प्रवेश कराते हैं ताकि कोई उन्हें उस व्यक्ति के साथ देख न ले। उस घायल सिपाही का वजन काफ़ी कम प्रतीत हो रहा था क्योंकि काफ़ी दिनों से वो भूखा था। और यहाँ पर उसका जो घायल शरीर है उसकी तुलना एक चिड़िया से की गई है जो काफ़ी दिनों से भूखी हो और केवल ऐसा महसूस होता है कि केवल उसकी हड्डियाँ और पंखों का ही वजन रह गया हो। डॉक्टर सडाओ ने इस घायल व्यक्ति को अपने पिता के कमरे में ले गए क्योंकि काफ़ी वर्ष पूर्व उसके पिता का देहांत हो चुका था और इसलिए इस कमरे का प्रयोग काफ़ी दिनों से नहीं किया गया था। यहाँ पर इस कैदी को फर्श पर लेटाया गया क्योंकि वहाँ पे कोई चरपाई नहीं थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये कमरा उसके डॉक्टर सडाओ के पिता का था और उन्हें चरपाई पे लेटना या किसी भी तरह के विदेशी सामान का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता था। इसलिए इस कमरे में जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो सब डॉक्टर सडाओ के पिता को खुश करने के लिए यहाँ पर सजाई गई थी। हना जल्दी से दूसरे कमरे में जाकर अलमारी से एक अच्छी रजाई लेके आती है, लेकिन क्योंकि ये रजाई बहुत सुंदर है, काफ़ी फूलों के इसमें चित्र हैं और रेशमी धागा से बनी हुई इसके बॉर्डर लाइनिंग्स थी, इसलिए हना थोड़ा हिचकिचाती हैं कि इतने गंदे आदमी के ऊपर इतनी सुंदर रजाई कैसे ओढ़ने को दूँ। वो नहीं चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब वो एक घायल व्यक्ति को अपने घर ला चुके थे तो अब उसकी मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी उसकी थी। He is so dirty, she murmured in distress. Distress, yes, means disappointed with heat. तो मन ही मन में वो खुद से कहती है कि वो इंसान इतना गंदा है, तो वो कहना ये चाहती है कि उस गंदे इंसान के ऊपर मैं इतनी सुंदर रजाई कैसे डाल दूँ। Yes, he had better be washed, Sadao agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. तो डॉक्टर सडाओ ने भी कहा कि हाँ वाकई में ये इंसान बहुत गंदा दिखता है, तो हमें अब जो है अगर आप हना से उसने कहा कि अगर आप जो थोड़ा सा गर्म पानी की व्यवस्था कर दें तो मैं इसे धो देता हूँ। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, सी सेड. वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स हियर ही इज़ हियर. आई विल टेल यू मी नाउ सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड सी कैन वॉश हिम. लेकिन तुरंत हना ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा आपको इस गंदे इंसान को धोते हुए नहीं देख सकती, और ये काम आप क्यों करेंगे, हमारे घर में नौकर हैं, मैं यूमी को कह देती हूँ. यूमी उनके घर की मेड है, नौकरानी है. वो कहती है कि वो अभी बच्चों का देख रेख कर रही है, वो कुछ समय के लिए वो बच्चों को अकेला छोड़ करके इस घायल सिपाही को धोने के लिए मैं उसे बुलाती हूँ. सडाओ कंसिडर्ड ए मोमेंट. लेट इट बी सो, ही अग्रीड. यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स. डॉक्टर सडाओ ने कुछ समय थोड़ा सोचा, कहा कि ठीक है, आजमा के देख लीजिए, आप यूमी से कहिए और मैं अन्य नौकरों से कहता हूँ. बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियसनेस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स. लेकिन जिस तरह से उस घायल सिपाही का शरीर पीला पड़ता जा रहा था तो डॉक्टर सडाओ को थोड़ा सा संदेह होता है और अब वो उसके करीब झुक करके उसके पल्स को देखने लगता है ताकि वो ये पहले कंफर्म कर सके कि वाकई में ये इंसान जिंदा भी है या मर चुका है. इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर. यद्यपि वो पल्स जो है बहुत धीमी चल रही थी, लेकिन ये अब साफ हो चुका था कि ये घायल व्यक्ति अभी तक
इसकी सांसें चल रही हैं, ये जीवित है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, द हॉट टू वॉज एट लाइव। और डॉक्टर सडाव ने अपनी हथेलियों को, अपने हाथों को उसकी छाती पर रखते हुए महसूस किया कि उसका दिल की धड़कनें भी चल रही हैं। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है। He will die unless he is operated on, Sadao said. Considering the question is whether he will not die anyway. डॉक्टर सडाव ने कहा कि इस व्यक्ति का तुरंत ऑपरेशन होना ज़रूरी है अगर इसे बचना है, लेकिन अब ये इसकी किस्मत है कि ऑपरेशन होते होते इसकी जान न चली जाए, क्योंकि स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि कहा नहीं जा सकता कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल होगा भी या नहीं, लेकिन फ़िलहाल इसे बचाने के लिए इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। हना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड अलाइव। और हना जोर से चिल्लाती है कि नहीं नहीं, इसे बचाने की कोशिश मत कीजिए, अगर ये जीवित बच गया तो क्या होगा। इसका मतलब हना को इस बात की चिंता थी कि इस आदमी के जीवित रहने पर हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, हमारा पूरा परिवार जो है पर देशद्रोह का आरोप लगेगा, इसलिए इसका मरना ही बेहतर है। What if he should die? Sadao replied. He stood gazing down on the motionless man. This must have extraordinary vitality, or he would have been dead by now. By then he was very young, perhaps not yet. By then he was very young, perhaps not yet 25. तो डॉक्टर सडाव कहते हैं कि तब क्या अगर ये मर भी गया, और इट मीन्स कि अगर ये मेरे घर पे मर जाता है तो फिर मेरे डॉक्टर होने का क्या फ़ायदा है। तो इस तरह से डॉक्टर जो है बहुत ही असमंजस में है कि इस अगर ये मर जाता है तो एक डॉक्टर फेल हो जाता है, और अगर ये बचता है तो फिर तो पूरा परिवार ही खतरे में है। लेकिन डॉक्टर सडाव लगातार बिना पल के झपके उस घायल व्यक्ति को, जो बिल्कुल स्थिर पड़ा हुआ था, बेहोशी की हालत में था, उसे देखते रहे। और उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है इसका जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ, विटालिटी मीन्स स्ट्रेंथ, बहुत ही गज़ब की इस इंसान के पास ताकत है, नहीं तो शायद इतना टॉर्चर के बाद और इतनी घायल अवस्था में, इतनी चोटें खाने के बाद शायद ही कोई इंसान जीवित रह सके। और उसको देख करके उन्होंने अनुमान लगाया कि मुश्किल से अभी इसकी उम्र जो होगी वो 25 के आसपास होगी। You mean die from an operation? हना asked. Yes, Sadawa said. तो हना ने एक क्यूरियोसिटी उसके मन में होती कि आपका कहने का मतलब क्या ये एक मतलब ऑपरेशन से मर चुका होता। यस सेड डॉक्टर सडाओ। तो डॉक्टर सडाओ ने हामी भरी, इसका मतलब है इससे पहले भी कभी उस सिपाही को ऑपरेट किया गया था, जहाँ पर उसने वो उस ऑपरेशन को झेलने की उसके अंदर क्षमता थी। इसलिए डॉक्टर सडाव ने कहा कि नहीं, क्षमता, चोट को सहन करने की शक्ति इस व्यक्ति के अंदर असाय थी, काफ़ी थी। हन्ना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर सडाव टर्न्ड अवे। At any rate, sometime must be done with him. Something must be done with him, he said, and first he must be washed. He went quickly out of the room and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. तो डॉक्टर सडाव ने हना, और भी बहुत सारी चीज़ें हन्ना के मन में संदेह था और वो जानना चाहती थी कि डॉक्टर सडाव को उसके बारे में क्या क्या पता चला, लेकिन ये समय बातचीत का नहीं था, और इसलिए डॉक्टर सडाव ने कहा कि नहीं, तुरंत अभी इसके लिए कुछ करना चाहिए, इसे बचाना होगा। और इसलिए वो कमरे से बाहर जाता है और कहता है कि गर्म पानी की व्यवस्था होनी है ताकि मैं इसे जल्दी से धो सकूं। और जैसे डॉक्टर सडाव कमरे से बाहर निकलते हैं, हना भी उनके पीछे पीछे बाहर आ जाती है, क्योंकि वो उस व्यक्ति के साथ, उस घायल सिपाही के साथ उस कमरे में अकेली रहना नहीं चाहती थी। मतलब कहीं ना कहीं वो उस घायल व्यक्ति को देख के डरी हुई थी, और दूसरा क्योंकि उसे आभास था कि ये व्यक्ति जो अब लगता है बहुत सारी बदकिस्मती लेकर के आया है, उनके जीवन में कुछ उथल पुथल होने वाला है।
और इसलिए वो एक पल भी उस व्यक्ति के साथ अंदर अकेला रहना नहीं चाहती थी. He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace, living or dead. तो अमेरिका, जैसा हमने देखा था कि डॉक्टर सडाओ और हना की मुलाकात अमेरिका में हुई थी, लेकिन अमेरिका छोड़ने के बाद ये पहला ऐसा वक्त था जब किसी अमेरिकन व्यक्ति को हना देख रही थी. और अब वो अमेरिका और अमेरिका के लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती, क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत बुरे हो चुके थे. लेकिन आज एक अमेरिकन व्यक्ति जो उसके सामने जीवित या मृत पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसे वो लगता है कि आज वो उसका दुश्मन है. और मीनियंस का मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा है, परेशान करने वाला है, लिविंग और डेड. चाहे वो जिंदा रहे चाहे वो मर जाए, पर दोनों ही स्थिति में ये व्यक्ति जो है उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है. सी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी. और फिर वो फुलवारी की ओर जाती है, और वहाँ पे यूमी, क्योंकि वो अभी गार्डनिंग कर रही थी, तो उसको आवाज़ देती है. बट द चिल्ड्रन heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. लेकिन जैसे ही हना यूमी के लिए आवाज़ मारती हैं, तो उसके बच्चे अपनी माँ की आवाज़ सुन लेते हैं, और इसलिए ना चाहते हुए भी हना को अपने बच्चों के पास जाना होता है, और उनके साथ वो थोड़ा सा खेलने लगती है. और उनका जो सबसे छोटा बेटा था वो सिर्फ 3 महीने का था, और इसलिए वो थोड़ा सा अपने बच्चों के साथ उलझ गई. ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर सी मोशनड विथ हर माउथ, यूमी कम विथ मी. तो अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से स्नेह उनके माथे पर हाथ रखते हुए सहलाते हुए आ, हना ने यूमी को कहा कि यूमी तुम मेरे साथ चलो, कुछ ज़रूरी काम है. आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज़ रेडी. यूमी ने कहा कि मैं बच्चों को सुला के आती हूँ. ही इज़ रेडी, यूमी रिप्लाइड, ही इज़ रेडी. सी वेंट विद Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. So, as Yumi declared that she, uh, first of all, she had to take the baby for sleep. So, Hana accompanied Yumi, and she took the baby in her arms as the maid was making bed for the children. And as she laid the quilt, then Hannah uh, softly placed the baby on the floor. Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. The two servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lip. So now Hannah and Yumi quickly they moved toward the kitchen, and when their master, means there was another servant, a gardener, and when their master asked them to watch the wounded soldier, and when both of them came to know about a wounded American soldier, so both they were very frightened, because it was a soldier belonged to the enemy, and both the servants were badly terrified. And now the old gardener, he was so frightened that he uh, pulled the few hairs of his upper lip. Means he was just not in position to believe that what their masters have done. So he was must shocked. The master ought not to heal the wounds of this white man, he said bluntly to Hannah. The white man ought to be die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with the rocks. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. Now, the servants,
very strongly they resist to follow the orders of their masters. And they said that our master, means Dr. Sadao, must not treat the wounds of this wounded soldier. It must be left to die. But then they also said that this white man was saved from the gun, from the bullet, and then it was again hurt by the strong sea waves. Still, he survived. So now, if the doctor or treated the wounded person, then it will be to act against the sea, because sea too wants to kill this wounded soldier. So how can our doctor, our master, act against a gun or against a sea? Definitely his act will bring a lot of disharmony, a lot of trouble in their life. I will tell him what you say, Hannah replied courteously. But she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. Now, as Hannah realized that these servants are not going to follow their orders, so she very politely informed them, okay, I will convey your message to Dr. Sadao. And then she was also a little bit frightened uh, by the words of the servants, though she was not superstitious, but yet there was a doubt in her mind. And but as she was not as superstitious as the old man, because old man was a superstitious man, so Hannah was a educated lady, but still there was a doubt in her mind. तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हना यूमी के साथ किचन की ओर जाती है, तेज़ी से जाती है, जहाँ पर नौकरों को सारी घटना का पता चलता है। और दोनों ही नौकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर सडाओ के इस कार्य से सभी लोग जो है मुसीबत में पड़ने वाले हैं। और उन्होंने जो है उस घायल व्यक्ति को साफ करने से और डॉक्टर सडाओ की इस कार्य में किसी भी तरह की मदद करने से मना कर दिया। साथ ही क्योंकि जो गार्डनर था वो पुरानी सोच का व्यक्ति था, तो उसने कहा कि जो व्यक्ति बंदूक की गोली से बच गया, जिसे समुद्र की लहरों ने पटक पटक के मारा हो, ऐसे इंसान का इलाज करके उसे जीवित करना प्रकृति के खिलाफ होना है। और इसका जो है निश्चित तौर पे प्रकृति हमसे बदला लेगी। ये बहुत जल्दी हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। इस तरह से इस बूढ़े माली के शब्दों ने हना को झकझोर के रख दिया। और अब यद्यपि वो अंधविश्वासी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये शब्द कहीं ना कहीं उसे सच प्रतीत हो रहे थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, he told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. और अब यूमी के हना के मन में भी ये बात आ रही कि क्या वाकई में दुश्मन का इलाज करना सही है। और इसलिए उसने अभी यूमी को नहीं कहा कि वो गर्म पानी लेकर के आए और उस व्यक्ति को साफ करे, क्योंकि वो अब उन्हें ज़्यादा चिढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो डिटरमाइंड थे। उन्होंने संकल्प ले लिया था कि नहीं, वो एक दुश्मन की मदद तो कभी नहीं करेंगे। इसलिए हाना ने जोर ज़बरदस्ती नौकरों के साथ नहीं की। सी वेंट अहेड एंड स्लिड बैक द पार्टीशन. Sada was not yet there. Yumi, following, put down her wooden bucket. Then she went over the white man. When she saw him, his thick lips folded themselves into stubbornness. I have never was a white man, she said, and I will not was so dirty a one now. Hannah cried at her severely, you will do what your master commands you. Now, as soon as now, Yumi and Dr. Hannah both went to the room where that soldier was lying unconscious.
Then Hannah found that Dr. Sadao was not there. So he might be busy somewhere else. So both of them, they went inside, both the ladies, they went inside the room, and there she placed the bucket of water, and then uh, she went near the white man. Means then the maid servant Yumi, she went near, very near to the white man, and then she exclaimed some words. She said that I have never uh, helped or served a white man, and this man is also so dirty, so I will not wash him. So these were the final words which Yumi exclaimed. Hannah cried at her severely, "You will do what your master commands you." Now, Hannah very rudely scolded her maidservant and told, "You will have to do what your master's command." तो यहाँ पर हमने देखा कि हना यूमी के साथ उस घायल सिपाही के उस कमरे में जाती जहाँ पे वो बेहोशी स्थिति में लेटा हुआ था। उस वक्त डॉक्टर सड़ाओ भी कमरे में नहीं थे और पानी की बाल्टी को नीचे रखते हुए यूमी उस सफ़ेद या गोरे सिपाही के करीब जाती है और फिर मन ही मन में एक्सप्लेन कर मतलब कहराती है या बहुत ही ईर्ष्या की भावना से कहती है कि मैंने जीवन भर कभी किसी गोरे व्यक्ति की सेवा नहीं की और ये इंसान तो इतना गंदा है, मैं इसकी सफाई, इसके घावों की सफाई नहीं करूँगी। फिर हना चिढ़ते हुए कहती है कि यूमी, तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे मास्टर्स मालिक कह रहे हैं, तुम्हें उनका आदेश का पालन करना चाहिए। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face that Hannah felt unreasonable afraid. After all, if servants should report something that was not as it happened. लेकिन हना ने जब डांटते हुए यूमी से कहा था कि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारे मालिक तुम्हें कहते हैं, तो जो रेसिस्टेंस, जो विरोध की भावना या यूमी का चेहरा उस समय इतना डरावना था क्योंकि वो अब पूरी तरह से अपने मालिक का विरोध कर रही थी और उसके भयंकर चेहरे को देख करके, गुस्से भरे चेहरे को देख करके हना बुरी तरह से डर जाती है और अब उसे लगता है कि अगर इन नौकरों ने कहीं बाहर जाके ये सारी बातें फैला दी तो और ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। वेरी वेल, शी said with dignity. You understand, we only want to bring him to his senses so that we can turn him over as a prisoner. तो हना यहाँ पर अपना बचाव करते हुए कहती है कि देखो, हम केवल इसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ये व्यक्ति होश में आने लग जाएगा तो हम इसे पुलिस को सौंप देंगे। I will have nothing to do with it, Yumi said. I am a poor person and it is only my business. Then please, Hannah said gently, return to your own work. फिर यहाँ पर यूमी कहती है कि मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, आप इस प्रिजनर को बचाओ, इसे मार डालो, ये मेरा काम नहीं है। और इसलिए हना ने उसको कहा कि ठीक है, फिर जाके अपना वही काम करो जो तुम पहले कर रहे थे, आप इस कमरे से बाहर जा सकती हैं। देन प्लीज़, एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, बट दिस left Hannah with the white man alone. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. और इस वक्त यूमी कमरे से बाहर चली जाती है और हना अभी उस वाइट व्यक्ति के साथ अकेली खड़ी है, लेकिन इस वक्त वो डर नहीं रही क्योंकि यूमी के व्यवहार से उसके मन में जो गुस्सा पैदा हुआ है, उस गुस्से की वजह से अभी उसके मन से डर निकल चुका था। Stupid Yumi, she muttered fiercely. Is this anything but a man? And a wounded helpless man. और उसके जाते वो मन ही मन में खुद से कहती है कि मूर्ख नौकरानी, यहाँ पर हम जो हैं केवल एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक घायल इंसान है ना, और ये जो यूमी है इसके अंदर कहीं भी इंसानियत नहीं है, बहुत गंवार टाइप की ये औरत है। इस तरह से हना अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रही है।
In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and White Man covered. When she had his breast bare, she dipped the man clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. Now, uh, Hana finally decided to wash that wounded soldier, and again she took a towel and dipped it in the hot water and now began to wash his face very carefully. The man's skin, though rough with exposure, was of a fine texture and must have been very blond when he was a child. So now, as Yumi was very close to that wounded soldier, then she could see that his face was very uh, made of very fine texture. But as he was injured, so she realized that he must be very uh, beautiful when he was a young child. और इस तरह से हमने देखा कि यूमी ने हना की बात को नहीं माना और उसने कहा कि मैं इस तरह से गोरे लोगों की सेवा नहीं कर सकती। और फिर हना ने उसे डांटते हुए भी कहा था कि तुम्हें अपने मालिक का कहना मानना चाहिए, लेकिन यूमी ने फिर भी उनका आदेश का पालन करने से मना कर दिया और इसलिए हना ने नौकरानी को कमरे से बाहर जाने दिया और मनी मन अब गुस्सा कर रही हैं कि नौकरानी भी जो है किस तरह से अपनी जिद पे अकड़ी हुई है। हम तो हैं केवल एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नेक काम कर रहे हैं और वो भी एक घायल व्यक्ति है और ये जो है समझने की कोशिश नहीं कर रही। और इस तरह से अंतिम में हना ने खुद ही उस व्यक्ति की सफाई करनी शुरू कर दी। तो एक तौलिया को गीला करते हुए उसने उसके चेहरे को बड़ी सावधानी पूर्वक वो धोने लगी। While she was thinking these thoughts, though not really liking the man's better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean, but she dared not turn him over. Where, where was Sadao? Now her anger was ebbing, and she was anxious again, and she rose, wiping her hands on the wrong towel. Then, lest the man be chilled, she put the quilt over him. Lest the man be chilled, she put the quilt over him. Now, as Hannah was just washing the wounds of the soldier, she was just thinking about his childhood. Now, but she now admitted that now this wounded soldier is not a child. And as finally she washed, cleaned that wounded soldier, she found it difficult to turn his body to wash his back. And now she was much tensed because Dr. Sadao was not returning. It was a long time since he has gone out. So somewhere he was just frustrated at all these thoughts and long absence of her husband. Then lest the man be chilled, she put the quilt over him, and as it was a cold time, then she, after washing the wounds or the after washing the chest and face of the wounded soldier, then uh, Hannah she covered the soldier's body with the quilt. Sadao she called softly. He had been about to come in when she called. His hands had been on the door and now he opened it. She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat. Now, as Hannah was about to cry for Dr. Sadao, she realized that now he is at the door, and as soon as she cried, he opened the door. And now Hannah could see that Dr. Sadao is in his surgeon's suit and he was carrying his emergency bag for operating that wounded soldier. You have decided to operate, she cried. Yes, he said shortly. He turned his back to her and unfolded a sterilized towel
upon the floor of the Tokonoma alcove and put his instruments upon out upon it. So now uh, Hannah asked him that, so finally you have made up your mind to treat this wounded soldier. And then Sadao replied yes, and then he began to uh, spread that a Tokonoma alcove and put all his instruments, arrange his all instruments on that sterilized towel. तो यहाँ पर हना बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगती है कि इतना समय हो चुका है और डॉक्टर सडाओ लौट कर नहीं आए। और जैसे वो उनको आवाज़ देने लगती है, डॉक्टर सडाओ उस कमरे में प्रवेश होते हैं, लेकिन इस समय हना देखती है कि डॉक्टर अपने ऑपरेशन सूट में हैं और अपने साथ जो इमरजेंसी बैग लेके आए हैं। और अब वो हना ये जान चुके थे कि फाइनली डॉक्टर सडाओ ने इस व्यक्ति को ऑपरेट करने का, इसका ऑपरेशन करने का निर्णय ले लिया है। और अब डॉक्टर सडाओ अपना पूरा सामान जो उनके बैग में था उन सबको व्यवस्थित करने लगते हैं। एक तौलिया वो बिछाते हैं नीचे और उसके ऊपर उन्होंने सारा ऑपरेशन का सामान रख दिया। Fetch towels, he said. She went obediently, but now anxious now, to the linen shelves and took out the towels. There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering. She put out to be the back veranda where the gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold night and took an armful of them. Now, Dr. Sadao urgently asked Hannah to make arrangement for a towel. Then now obediently she followed the doctor's instruction and went back to bring the towel. And also she thought that as the soldiers' wounds are bleeding, so to prevent the floor mats from spoiling, she decided to take the old matting pieces from the garden where the gardener has placed them to prevent the shrubs and flowers from the old mm, from the cold climate. And she went out to the back veranda where the gardener kept strips of the matting with which to protect the delicate shrubs on cold nights and took an armful of them. And then Hannah, he took some of the mats so that she can place them on the floor to prevent the fine tiles from getting spoiled due to the bleeding wounds of the soldier. But when she went back into the room, she saw this was useless. The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. But Hannah was too late. When she returned, she found that the soldiers' wounds were bleeding badly, and many drops of blood has already spread on the mats of the floor. Oh, the mats, she cried. Yes, it is ruined, Sadao replied, as though he did not care. Help me to turn him, he commanded her. So now, as he came, she wanted to say that the mats uh, as ruined by the blood of the man. Dr. Sadao said, yes, these mats were already ruined. Now, don't take care of the uh, mat. Just come and help me in turning this soldier. She obeyed him without a word and began to wash the man's back carefully. And now both of them tried to turn that soldier on his stomach. And now, as he was lying on his stomach, so now again Hannah started washing his back with that wet towel. Yumi would not wash him, she said. Did you wash him then? Sadao asked, not stopping for a moment his swift, concise movements. Yes, she did. So now, Hannah informed Dr. Sadao that Yumi did not wash the wounds of this soldier,
Then Dr. Sadao realized that all these washings was done by the Hannah herself. He did not seem to hear her, but she was used to his absorption when he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked, so long as it was for the work he did so excellently. But as Dr. Sada was in his work, he was now busy. He was making preparation for the operation, so he was not giving any proper attention to Hannah. And Hannah also knew this fact that when Dr. Sadao is at work, he pay all his attention towards his work, and he also knew about his excellently. तो यहाँ पर हमने देखा कि डॉक्टर सडाओ जैसे कमरे में आते हैं वो ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। हना से वो कहते हैं कि जल्दी से एक तौलिया की व्यवस्था करो, और हना ये सोचती है कि इससे पहले कि हमारे फर्श उस कैदी के खून से गंदे न हो जाएं, तो इसलिए वो क्यारियों की तरफ दौड़ती है जहाँ पे माली ने कुछ मैट्स फूलों के ऊपर रखे थे ताकि फूल ठंड के मौसम में मुरझा ना जाए। तो वो उन मैट्स को लेकर के कमरे में पहुंचती है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि डॉक्टर सडाओ ने जो है उस व्यक्ति के घावों को खोल दिया था, जिसकी वजह से खून ज़्यादा बहने लगता है और फर्श पर भी काफ़ी खून की बूंदें पड़ चुकी थी। इसलिए अब उन मैट्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, और डॉक्टर सडाओ ने हन्ना से कहा कि मेरी मदद करो, इस व्यक्ति को क्या करना है, पेट के बल लेटाना है ताकि इसकी पीठ पे लगी गोली को निकाला जा सके। और दोनों ने मिलकर उसको उसकी करवट बदली, और उसके बाद हना ने दोबारा उसकी पीठ को साफ करना शुरू किया। और इस वक्त वो डॉक्टर सडाओ को बताती है कि हमारी नौकरानी ने इस व्यक्ति के घाव को साफ नहीं किया। तो डॉक्टर सडाओ ये महसूस कर चुके थे कि शायद ये सारी सफाई जो है हना को ही खुद करनी पड़ी। और यहाँ पर हन्ना उससे बातें तो कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर सडाओ अब अपने काम में व्यस्त हो चुके थे, और ये बात हन्ना भी अच्छी तरह जानती थी कि जब वो काम पे होते हैं तब फिर वो किसी और बात को पर गौर नहीं करते, और इसलिए अब उसने उससे बातें करना बंद कर दिया। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स, ही सेड। आई सी रिपीटेड ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई, इट इज इजी और एनफ, ही सेड इम्पेशेंटली। अब डॉक्टर सडाओ कहते हैं कि देखिए अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको इसको एनेस्थेटिक देना होगा। एनेस्थेटिक का मतलब है कि क्योंकि अभी तो पेशेंट बेहोश है ना, ऐसा है जैसा मरा ही हुआ होगा, इसलिए ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन ये संभावना थे कि ऑपरेशन होते होते शायद अगर उसे होश आने लग जाए, फिर अगर वो हिलेगा तो फिर ऑपरेशन करने में दिक्कत है। एक वो दर्द होगा तो स्वाभाविक है वो मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट हुआ तो फिर कट ज़्यादा लगने लग जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसने हना से ये कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें इसे बेहोश करना होगा, तो एनेस्थेटिक का काम अब तुम्हारा होगा। और ये सुन करके हना बहुत ज़्यादा घबरा जाती। उसने कहा कि मैंने तो ये काम कभी नहीं किया, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो डॉक्टर सडाउ ने उसने कहा कि बहुत आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट ए पैकिंग नाउ and the blood began to flow more quickly. He peered into the wounds with the bright surgeon's light fastened on his forehead. The bullet is still there, he said with cool interest. Now I wonder how deep this wound is. If it is not too deep, it may be that I can get the bullet, but the bleeding is not superficial. He has lost much blood. Now, Dr. Sadao, as you might have remembered that when uh, the wounds of the soldier was bleeding, then Dr. Sadao, what he do? He pushed some mosses in the open wounds to prevent bleeding. Now he is unpacking all those stuffs, and again the wounds started bleeding. And with the doctor's torch, now Dr. Sadao could, as now the wound is open, now through that light he discovered that yes, the bullet is still inside. And now he is just taking assumption that how deep is has the bullet pierced.
So if it is not so far, not so deep, then easily I can remove the bullet. And now the bleeding is not important because the patient has already lost a lot of blood. So now bleeding will not take place much. But more important is to take out the bullet. तो यहाँ पर डॉक्टर सडाव ने उस व्यक्ति को उसका जो बंद घाव उसने उस वक्त कुछ हरी भरी घास से किया हुआ था उसको उसने घावों को खोल दिया। और जैसे घाव अब खुले हो गए तो डॉक्टर ने अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखा कि गोली अभी भी अंदर ही थी। और अब वो अंदाज़ा लगा रहा है कि अगर गोली ज़्यादा गहरी ना हो तो आसानी से इस व्यक्ति को कि ये गोली को निकाला जा सकता है। लेकिन अभी ब्लीडिंग की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि व्यक्ति तो अब पहले उसका बहुत सारा खून बह चुका था तो अब ज़्यादा खून नहीं बहेगा। At this moment, Hannah choked. He looked up and saw her face the color of sulfur. और ये सब देख करके हना का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। और डॉक्टर सडाओ ने जब हना का चेहरा देखा तो वो भी समझ गया कि हना भी थोड़ी सी उसके मन में घबराहट है, वो डरने लगी है। Don't faint, he said sharply. He did not put down his exploring instruments. If I stop now, the man will surely die. She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room. Outside in the garden, he heard her retching, but he went on with his work. Now, when Dr. Sadao realized that Hannah is feeling uneasy, then he already informed her, don't faint, don't become unconscious. You will have to remain conscious as long as this operation will go. So, and now he was just you having instruments in his hands. Now I cannot stop this operation, otherwise this soldier will die surely. So now uh, Hannah, she put her hands on her mouth and she went outside the room. And now the doctor could hear her vomiting outside. Retching here means vomiting. But he went on with his work. But now doctor did not care about his wife. He continued his work. Unless if he had stopped the work operating the patient and took care of Hannah, then surely the patient would have died. तो यहाँ पर हना ने जब उस व्यक्ति के खुले घावों को देखा तो वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। एक मतलब वो जो घाव की वजह से जो मांस खराब हो रहा था उसकी जो बदबू थी उन सब को देख करके हना को बेचैनी होने लगती है। और इसलिए डॉक्टर सड़ाव पहले ही कह देते हैं कि बेहोश मत होना, कि अगर तुम बेहोश हो गए तो फिर मुझे ये काम छोड़ना होगा और अगर अब ये ऑपरेशन रुका तो ये इंसान इसकी मौत पक्की है। और इसलिए हना खुद ही वहाँ से बाहर चली गई और मुंह पर हाथ लगाते हुए, लेकिन अभी डॉक्टर सड़ाव वहाँ पे सुन पा रहे थे कि बाहर वो उल्टियाँ कर रही थी, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा और ऑपरेशन चालू रखा। It will be better for her to empty her stomach, he thought. He had forgotten that, of course, he had never seen an operation, but her distress and her inability to go, and his inability to go to her at once, made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. Now, uh, Dr. Sadao is convinced that at least by vomiting she is just emptying her stomach. But now, for a moment, he also forgot that she had never seen an operation, and so she was feeling uneasy at looking at that operation. But as he was sad, disappointed, and he was unable to help his wife, so he became a little impatient and irritable at this man who was sleeping soundly dead under his wife knife. तो यहाँ पर जो डॉक्टर सडाव है उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी बाहर जा कर के उल्टियाँ कर रही हैं, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, कम से कम उसका पेट खाली तो हो जाएगा।
लेकिन थोड़ी देर के लिए वो ये भूल गया कि हना ने कभी भी ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ही कॉमन है किसी भी आम इंसान के लिए। और लेकिन अभी वो थोड़ा सा अपने आप से चिढ़ने लगा है, अपने आप पे ही गुस्सा कर रहा है कि वो अभी कितना मजबूर है कि वो अपनी पत्नी की इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, वो उसको उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। और वजह क्या है? ये इंसान जो बेड पर या जो फर्श पर जो है बेहोशी की स्थिति में पड़ा हुआ है, उसकी वजह से आज उसकी पत्नी इस तरह से परेशान है और वो चाह कर भी अब उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों ने डॉक्टर को भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा कर दिया, उसे भी इस घायल व्यक्ति पर गुस्सा आने लगा। दिस मैन ही थॉट देयर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। और उस व्यक्ति को देख करके अब डॉक्टर के मन में भी थोड़े से नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि पूरी ब्रह्मांड में मुझे नहीं लगता कोई एक वजह हो जिसकी वजह से या जिसके लिए इस व्यक्ति को बचाया जा सके। इसके जीने की कोई वजह नहीं है, इसे मरना ही चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीड स्विफ्टली। इन हिज ड्रीम द मैन moaned but Sadao paid no heed except to mutter at him. इसलिए थोड़ा सा आवेश में आकर के डॉक्टर जो है निर्दयी होते हुए भी निर्दयी होकर के आगे अपना ऑपरेशन करने लगा, उस व्यक्ति को ऑपरेट करने लगा। लेकिन ये जो घायल व्यक्ति था ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सपने में करा रहा है, कहीं ना कहीं वो दर्द महसूस कर रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि पेशेंट, जैसे उसने पहले ही कहा था, हो सकता है वो ऑपरेशन होते होते बीच में होश में आने लगे और शायद यही वजह थी जब वो दर्द के मारे करा रहा था तो वो दर्द महसूस कर रहा है, इसका मतलब उसे होश आ रहा है। लेकिन डॉक्टर सडावा ने जो है उसके उस दर्द को ध्यान नहीं दिया और मटर एट हिम। लेकिन ऑपरेशन करते समय कई बार डॉक्टर जो है पेशेंट का ध्यान भटकाने के लिए उससे बातें भी करते हैं, उससे इसलिए वो लगातार उसे थोड़ी थोड़ी बातें करता रहा, लेकिन उसने उसके दर्द का ख्याल नहीं रखा। ग्रॉन ही मटर्ड, अ ग्रॉन इफ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, इनफैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट। और जब वो व्यक्ति दर्द के मारे चीख रहा था तो डॉक्टर ने कहा कि चीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने शौक़ के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद भी पता नहीं है कि मैं आखिर ये कर क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हना अगेन। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, सी आस्क्ड इन ए क्लियर वॉइस। और फिर से अचानक दरवाज़ा खुलता है और हना दौड़ करके आती है कि डॉक्टर बताइए एनेस्थेटिक कहाँ है, क्योंकि वो भी महसूस कर चुकी थी कि पेशेंट होश में आ रहा है और डॉक्टर सडाव के लिए ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए उनकी मदद करने के लिए वो फिर से आती है कि मुझे इस व्यक्ति को बेहोश करना है। सडाव मोशनड विद हिज चिन, इट इज़ एज वेल दैट यू कम बैक, ही सेड, दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टिर। तो सडाव ने केवल इशारों से उसको बताया, एनेस्थेटिक के बारे में बताने की कोशिश की और कहा कि अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए, अब ये व्यक्ति ये हिलने लगा है। She had the bottle and some cotton in her hand. But how shall I do it? She asked. Now, Hannah took a bottle in his hand and a piece of cotton in her other hand. Now, and again she inquired, Doctor Sadaudit, how should I use this medicine? Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadao replied without delaying for one moment the intricate details of his work. When he breathes badly, move it away a little. Now, Dr. Sadao asked Hannah to saturate, to drench the whole cotton piece with this anesthetic and to bring those cotton near his nostrils. But he also uh, gave her clear instruction that you will have to remove this cotton away when the patient takes deep breath. तो यहाँ पर हना वापस कमरे में आ जाती है क्योंकि उसने भी एहसास किया कि जो सिपाही है, घायल सिपाही है, वो होश में आ रहा था। तो उसने डॉक्टर से कहा कि मैं एनेस्थेटिक कहाँ है, और एनेस्थेटिक की बोतल और कुछ
रुई का गुच्छा हाथ में लेते उसने कहा कि मैं इसका प्रयोग कैसे करूं। तो डॉक्टर सडाओ ने उसको कहा कि आपको उस पूरी रुई को इस एनास्थेटिक से भिजाना, से गीला करना है, और उसके बाद जैसे जैसे ये जो सिपाही है इसके नॉस्ट्रिल्स मैंने नाक के पास रखना है, और उसके बाद जब कभी वो गहरी सांस लेगा तो फिर आपको वो रुई थोड़ा सा दूर हटा लेनी है। तो एनास्थेटिक में होगा क्या, एक क्लोरोफॉर्म होता है जिसको भी कभी भी हम किसी भी व्यक्ति को अगर सुंघाने की कोशिश करते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। लेकिन ज़्यादा गहरी सांस लेने पर या ज़्यादा देर तक या ज़्यादा क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करने पर कभी कभी व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। इसलिए एनेस्थेटिक देना कोई आसान काम नहीं है। तो ऑपरेशन के दौरान पेशेंट्स को एनेस्थेटिक दिया जाता है ताकि वो ऑपरेशन के दौरान होश में ना आ जाए। और यहाँ पर भी हमने देखा किस तरह से डॉक्टर सडाओ हना को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो कैसे यूज़ करे। She crouched close to the sleeping face of the young American. It was a piteously thin face, she thought, and lips were twisted. The man was suffering whether he knew or not. अब हना जो है काफ़ी करीब उस व्यक्ति के पास चली गई जो बेचारा गहरी नींद में सोया हुआ था, और उसको चेहरे को देख करके उसे दया आ रही थी कि कैसे उसके जो ओंठ हैं वो मुड़े हुए हैं, और इस तरह से वो व्यक्ति पता नहीं दर्द को महसूस कर भी पा रहा है या नहीं। वॉचिंग हिम सी वॉन्डर्ड इफ द स्टोरीज द हॉट समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर टोल्ड बाय द वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कंट्राडिक्टेड। अब हना के दिमाग में कुछ बातें याद आ रही हैं कि उसने कई बार सुना था कि प्रिजनर ऑफ वॉर जब पकड़े जाते हैं, कैदियों जो युद्ध के दौरान पकड़े जाते हैं, उनको किस तरह से यातनाएं दी जाती हैं, कैसे तड़पाया जाता है, वो सब उसने सुना था। लेकिन वो सब केवल कहानियों में शब्दों के द्वारा ही उसने सुना था। लेकिन आज पहली बार उसे वो सब देखने को मिल रहा था कि इस सिपाही के साथ कितना ज़्यादा जातियाँ की गई, कितना ज़्यादा इसको परेशान किया गया होगा। In the newspapers, the reports were always that whenever the Japanese armies went, the people received them gladly, with cries of joy at their liberation. But sometimes she remembered such men as General Takema, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so viciously a battle in Manchuria. तो अखबारों की बात वो कर रहे कि अखबारों में जो रिपोर्ट्स छापी जाती है उनमें तो केवल ये कहा जाता है कि जापानीज़ की जो सिपाही है, जापानीज़ की जो आर्मी है, वो जब कभी भी किसी प्रिजनर ऑफ वार को पकड़ती है तो उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा जाता है। लेकिन ये बात कंट्राडिक्ट, इस बात का विरोधाभास तब होता है जब वो एक जनरल टेकिमा का यहाँ पे वर्णन ले रही है कि वो किस तरह से कितनी बुरी तरह से अपनी पत्नी को घर में पीटता है। तो जो व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को इतनी बुरी तरह से मार रहा हो, वो युद्ध में पकड़े गए बंदियों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे, ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन अखबारों की सुर्खियों में केवल अमेरिका की जापान की प्रशंसा ही होती है। लेकिन इस घर में जो ये डोमेस्टिक वायलेंस अपनी पत्नी के साथ ये जनरल करते हैं, उसकी वजह से लोग अभी भूल जाते हैं कि युद्ध के मैदान में इसने कितनी बहादुरी से युद्ध लड़ा और जीता था। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like for this, for instance? और इसलिए हना ये सब मन ही मन में उसके मन में बहुत सारे अब सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ इतनी बुरी तरह से व्यवहार कर रहा हो, वो फिर इस तरह से पकड़े गए कैदियों के साथ क्या कुछ नहीं करता होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। She hoped anxiously that this young man had not been tortured. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear. और अभी हना ये दुआ करते कि शायद जापान की सेना ने जो है इस व्यक्ति के साथ कुछ इतना बुरा ना किया हो। लेकिन जैसे वो ये सोच रही थी, अचानक उसने उसके गले के नीचे कुछ लाल
चोट के निशान देखे। Those scars, she murmured, lifting her eyes to Sadao. और उसने डॉक्टर सडाओ के ध्यान भंग करते हुए कहा कि इसके गले के नीचे ये इतने गहरे निशान किस चीज़ के हैं। बट ही डिड नॉट आंसर। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी। लेकिन डॉक्टर सडाओ ने उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और इसलिए उसने आगे वो अपना ऑपरेशन करता रहा। और अचानक उसने देखा कि जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ कर रहा था उनके टिप पर कुछ हार्ड नीचे लग रहा है, नियर द किडनी। इसका मतलब है अब वो काफ़ी बुलेट तक पहुंच चुका था। ऑल थॉट्स लेफ्ट हिम। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर, डेलिकेटली फैमिलियर विद every atom of the human body. His old American professor of anatomy had seen. So, to that knowledge, ignorance of human body is the surgeon's cardinal sin. Sirs, he had thundered at the classes year after year to operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that of a murder. और अब डॉक्टर सडाव बहुत खुश हो चुके थे क्योंकि बुलेट के वो करीब पहुंच चुके थे, उनका ऑपरेशन लगभग पूरा होने वाला था। लेकिन अभी उन्हें अपने डॉक्टर की याद आती है जिसने उनको ट्रेंड किया हुआ था, एक प्रोफेसर। उन्होंने कहा था कि एक सर्जन के पास अगर ह्यूमन बॉडी, एनाटॉमी के वो टीचर थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर एक सर्जन जो ऑपरेशन करता है अगर उसको ह्यूमन बॉडी के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है तो निश्चित तौर पे वो पापी है। क्योंकि एक सर्जन को ह्यूमन बॉडी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और हर क्लासों में ईयर आफ्टर ईयर, हर वर्ष अपनी इन क्लासों में वो चिल्ला चिल्ला के लोगों से कहते थे कि किसी भी इंसान को ऑपरेट करने से पहले उसके बारे में पूरी शरीर की कंप्लीट जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और अगर कोई कम जानकारी के साथ किसी इंसान को ऑपरेट करता है तो इस तरह से ये किसी मर्डर से कम नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर सडाओ ने जो है अपने साइंटिफिक नॉलेज, अपने डॉक्टरी प्रोफेशन का जो नॉलेज है उसको भली भांति बहुत ही ईमानदारी के साथ यूज किया है। और इस तरह से अब वो उस घायल व्यक्ति को ट्रीटमेंट दे चुके हैं और बहुत जल्दी शायद वो होश में आने लगेगा। और इस तरह से उन्होंने अपने मेडिकल एथिक्स को बचाए रखा और एक डॉक्टर होने के नाता एक घायल व्यक्ति की जान बचाई। तो आज के लिए बस इतना ही। सो दिस इज़ एंड ऑफ आवर सेकेंड वीडियो एंड soon I will I will send another video for you. Till then, take care. Goodbye.